Strength is the sign of love and life. Strength is the sign of vigor and vitality. Strength is the sign of everything that is good. As long as there is life in the body is capable of doing its exercise in its perfection through mind, spirit and soul. With these words, I, Ghanshyam Das, on behalf of the Vidyalaya Parivar of Kendriya Vidyalaya Railway Colony, Kharagpur, welcome you all in this auspicious occasion of National Youth Day Celebration 2021. Most respected Principal Sir, learned colleagues, beloved children and dear parents, good afternoon each and everybody present over here who are directly or indirectly involved in this program. Today, this is 12th January 2021. This is an epoch-making day. This is a memorable day for the history of India. On this very day, one cyclonic monk, one patriotic monk was born, 12th January 1863. He is none but our beloved, our respected Swami Vivekananda. On this auspicious occasion of National Youth Day, to commemorate his birthday, this very day is being celebrated not only in this Kendriya Vidyalaya but also across the country. So to start the program, I would like to request our Honorable Principal Sir to garland the portrait and light the ceremonial lamp. Madam, Mamta Madam, Dolly Madam, please escort and assist. তুমি
তুমি সত্যের অনুসন্ধান, শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে মহামানব। তুমি জীবন, তুমি সকল, তুমি শক্তির অনুরণন, তুমি জীবন, তুমি সকল। We people are gathered over here and our children are involved along with us also through virtual mode. Our children, some of our children have taken part in this celebration. Now I would like to request others, sir, please run the video that is English speech by Siddhi Padhi, student of class A 7. very good morning to one and all present here. Today I, Siddhi Padhi of class 7 is going to present a few words on National Youth Day. National Youth Day is celebrated on 12th January since 1985 to mark the birth anniversary of Swami Vivekananda. Today is the 158th birthday of Swami Vivekananda. India's population is more than 100 crores, out of which 60% are in the age group of 15 and 30. Wisdom is not the monopoly of elders alone. The young men and women are also intelligent and wise, and much of a nation's progress and future depends upon them. Young people are full of abundant energy, courage, spirit for adventure, imagination, hope and ambition, and Swami Vivekananda always encouraged them for that. He used to say that the future somehow depends on the young people of India, and he also believed that we are the ones who will make them proud one day. The younger generation, which is more generous, flexible, sensitive and dynamic, can do wonders if properly guided and motivated. National Youth Day is celebrated all over India in schools and colleges by organizing conventions, speeches, yoga, sports, music competitions, etc. Swami Vivekananda was a great Indian youth icon. Thank you. Have a nice day ahead. Thank you, Siddhi. Rightly said, idol of spiritualism, Swami Vivekananda, the person who is well known for his intelligence, the person who is known for the incredible wisdom and knowledge. He is Swami Vivekananda, that is the Swami. A patriarch, a patriotic monk. In this connection, I would like to request Manisha Pal of class 5 to deliver the speech in Hindi. Manisha. प्रधानाचार्य, शिक्षकों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीषा पाल कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद के बारे में एक हिंदी में निबंध लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। भारत में पैदा हुए महान आध्यात्मिक किंवदंती स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता का काष्ठ परिवार में हुआ था। उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ था। उनका घर का नाम वीरेश्वर था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी। जब नरेंद्रनाथ बड़े हुए थे, उन्होंने अपने पिता और माता के दोनों का गुणों का निरीक्षण प्राप्त किया। अपने पिता से उन्होंने तर्क संगत सोच और अपनी माता से उन्होंने अंत नियंत्रण की शक्ति दी। नरेंद्रनाथ एक महान विद्वान, पहलवान और खिलाड़ी भी थे। उन्होंने संस्कृत विषय में महान ज्ञान प्राप्त किया था। वर्ष 1884 में बैचलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री प्राप्त किया। जब स्वामी विवेकानंद इस दुविधा के साथ संघर्ष कर रहे थे, तो वे राम श्री कृष्ण के साथ संस्पर्श आए, जो बाद में उनके गुरु बन गए। आध्यात्मिक संस्कृति के बारे में ज्ञान फैलाने विशेष रूप से
वेदांतिक स्रोत में एक मिशन के साथ अमेरिका गए थे। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन की शुरुआत में मुख्य सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका संबोधन तथा उन्होंने अर्थनीतिक की गहरी समझ सहित पूर्व और पश्चिमी संस्कृति दोनों पर अपने दो विचार व्यक्त किए। वो सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में वो महान प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न पूर्ण जाए तथा अपने को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उनका काम विचार एकाग्रता, धर्मनिष्ठा, पुस्तकालय में एक अनदेखा कीमती की तरह रखा है। इसलिए वे अपनी स्वस्थ जीवन को छोड़े और अपना काम के लिए प्रेरणा ली। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मनीषा ने प्रयास किया है। बिल्कुल सही बात आपने कहा है। Swami Vivekananda was such a personality who brought India into the spiritual map of the world. Rightly said, service to mankind is service to God. He renounced the world not only to roam in the streets of India and outside of India, but also he sacrificed his life for the sake of the mankind, for the sake of the people of this globe. So in this connection, here is one video clip on Swami Vivekananda. Let's have a glance. The life and teachings of Swami Vivekananda, 1863 to 1902, the patron saint of modern India. Swami Vivekananda was born in Kolkata in the year 1863. He is remembered by epithets such as the cyclonic monk of India, the patriot saint of India, and so on. His guru, Sri Ramakrishna Paramahamsa, recognized him as one of the Saptarishis, or the seven great sages, who came down to earth to uplift the people. His brother disciples and Eastern and Western disciples alike, Ramakrishna Paramahamsa of Dakshineshwar, Kolkata, could tell him that he had seen God, and anyone who sincerely seeks God can see him. Narendra accepted Sri Ramakrishna as his guru. Sri Ramakrishna practiced the spiritual peace them. They instantly ran away. He later advised, we should not run away from problems, but face them. That is the only way to solve our problems. At Kanyakumari, sitting on the last bit of Indian rock, Swamiji went into deep meditation. He pondered over the greatness of India and its present degeneration. He hit upon a plan for the rejuvenation of India with the twin ideals of renunciation and service. For his plans to fructify, he visualized that he would bring technology from the West and in exchange give them Vedanta. He decided to participate in the World's Parliament of Religions being held at Chicago, USA in September 1893. He sailed to the USA from Bombay. At the Parliament of Religions in Chicago on the 11th of September 1893, his opening words, Sisters and brothers, reached complete admiration from the audience. In that speech he said, I am proud of the religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. The
We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. In the concluding session of the Parliament, he declared, "The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian, but each must assimilate the spirit of Allah and yet preserve his individuality. Health and not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace and not dissension." Even at the peak of his glory at the Parliament of Religions, he was feeling deeply for the poor of his countrymen. In his host's house, leaving a comfortable mattress, he preferred lying on the floor. There, he shed tears for his poor countrymen. In a lecture, he declared, "India I loved before I came away. Now, the very dust of India has become holy to me. The very air is now to me holy. It is now the holy land, the place of pilgrimage. Others, the rest, are more dead than alive." After propagating Vedanta in the West, Swamiji reached India on the 26th of January 1897. In reply to the rousing reception at Rameshwaram temple, he said, "Cast it off like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world knows that it is one with God." Swami Vivekananda entered Mahasamadhi on the 4th of July 1902. Sitting in deep meditation, he left his mortal coil. In a nutshell, just a clip about Swami Vivekananda. There is an ocean of knowledge and information about Swami Vivekananda. Whatever and the amount of speech that we will deliver will still be remain to be delivered. That intellectual personality who was a source of inspiration for the youth, who motivated the youth for the well-being of the society, that is as a whole. He is our respected Narendranath Datta, called Swami Vivekananda. So now I would like to call our Honorable Principal Sir to address the students' parents on this occasion. Sir, please. Good afternoon to all my students who are watching us virtually, the parents and my dear colleagues who are attending it live at this platform. Let me start this with a story that I remember. Regarding Vivekananda, many things was told. He was Swami, he was a great gentleman from India who just put up the point of view how we live here in our country. But still I think this is a platform where I can share my views or the story which is related with Swami Vivekananda, that when he has to go to deliver a speech in 1893
to Chicago, he went to take the blessings of her mother. ये सोचे कि जब हमको धर्म संसद में भाषण देने के लिए जाना है तो क्यों नहीं एक बार अपनी माँ का आशीर्वाद लेने। माँ के आशीर्वाद लेने के लिए अपनी माता के पास गए, माँ से मिले। माँ ने इनको खाना परोसा और सोची कि क्यों नहीं इसका एक परीक्षा भी ले लूं, इसका एक टेस्ट भी ले लूं कि क्या सच में मेरा बेटा इस काबिल हो गया है कि वो धर्म संसद में जाकर भाषण दे पाए। इसके लिए उनकी माँ ने उन्हें रात का भोजन करा दिया। भोजन कराने के बाद मतलब शाम का भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनके पास फल की टोकरी रख दी कि जरूरत पड़ने से उसमें से फल निकाल के वो खाएंगे। देखे कि नहीं, विवेकानंद फल नहीं खा रहे थे। तो माँ बोली कि चलो, माँ का दिल माँ का ही होता है, वो बोली कि चलो हम ही खिला देते हैं। वो टोकरी से फल निकाल ली और विवेकानंद से बोली कि बेटा तुम वहां से चाकू लेके आओ। वो जब चाकू हैंडओवर किए इनको, तो जैसे ही चाकू अपने हाथ में ली, उसके बाद से वो बोली कि जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सभी तरह से विजयी होके वहां से वापस आओगे। सिर्फ इतना ही था कि उस मदर ने उस चाकू को जब अपने हाथ में लिया, उतना ही भर से उनका परीक्षा कर ली। क्या परीक्षा की? जब विवेकानंद चाकू उनको दे रहे थे तो जो पॉइंटेड, जो शार्पर पार्ट था वो विवेकानंद के हाथ में था, और जिस तरफ में हैंडल लगा हुआ रहता है, बेंत लगा हुआ रहता है, वो पार्ट उनकी मदर के तरफ वो बढ़ाए। और इतना ही विवेकानंद के द्वारा किया गया काम था जो उनकी माँ को सेटिस्फाई कर गया कि हाँ, ये आदमी आगे जाकर समाज को या फिर विश्व को अपना जो भी मतलब अपने अंदर में है वो चीज दे सकता है। क्यों? क्योंकि माँ ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि बेटा तकलीफ का हिस्सा अपने तरफ रख लिया था और जो सुख वाला पोर्शन था वो दूसरे के सामने रख दिया। मतलब आप तब तक किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जगह समाज में, जब तक कि आप दुख को भी उतनी ही खुशी से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, तब तक आप में वो सामर्थ्य आएगा ही नहीं कि आप अपने अंदर की अच्छाइयों को बांट लें। आपको दुख को एक्सेप्ट करते हुए पहले दूसरों के बारे में सोचना है। वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारी माँ के हाथ में ये लग जाएगा, उन्होंने माँ की तरफ चाकू का शार्पर पार्ट नहीं बढ़ाया। बहुत कम लोगों को ये ख्याल आता है। जब भी हम अब अपने नॉर्मल जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में देखिए, जो माँ बाप होंगे वो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हमारा बच्चा मैक्सिमम सुख सुविधा में रहे। और जो बच्चे हैं, बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमारे माँ बाप ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा में रहे। तो सिर्फ ये माँ बाप और परिवार तक ही क्यों ना इसको बढ़ा के अपने स्कूल तक, स्कूल से समाज तक, समाज से देश तक और पूरे विश्व को इकट्ठा किया जाए। तो सोच का शुरुआत घर से ही होता है। और जब तक हम दूसरे के लिए अच्छा करने का नहीं सोचेंगे, तब तक सही मायने में जिस पोजीशन पे भी हैं, भगवान की ये हम लोगों के ऊपर महती कृपा है कि हम सबों को वैसा अवसर दिया है भगवान ने। इसके लिए आप सभी उनका शुक्रगुजार होइए कि आप यहाँ से समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं या कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी हमको देखकर सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम समाज को क्या अच्छा दें और वही सुनिश्चित करना है। ये एक बात हुई। एक और इनका ही प्रसंग मुझे याद आ रहा है। इनकी इतनी सारी कहानियां मेरे जहन में है कि मैं चाह के भी सबको शेयर नहीं कर सकता और सब एक से एक अद्भुत है। ये मैंने एक छोटा सा ही आपको उदाहरण दिया, सब एक से एक। हमारे बच्चे अगर हमारे बीच में रहते हैं, इसको शेयर करने में और अच्छा लगता है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बच्चे इसको देखेंगे और जब वो इसे सुनेंगे तो निश्चित तौर पे प्रभावित भी होंगे और उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत बदलाव आएगा जो निश्चित तौर पे उनको सही दिशा में ले जाएगा। इन कार्यक्रमों का मकसद भी
मुख्य तौर पे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से यही है। तो एक और प्रसंग मैं जो अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहूंगा, जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं। जब ये धर्म संसद में भाषण देने के लिए गए हुए थे, तो उसी समय स्वामी जी शिकागो में कहीं घूम रहे थे। घूमने के समय में इन्होंने, जब वो एक ब्रिज से गुजर रहे थे, नदी के ब्रिज से पैदल ही गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक सेल्स पे, मीन्स अंडा का जो छिलका होता है, नदी में तैर रहा था, उस पर निशाना लगा रहे थे। तो उस पर निशाना लगा रहे थे, सेल्स पे निशाना लगा रहे थे, नहीं लग रहा था, बार बार कोशिश कर रहे थे। तब इन्होंने क्या किया कि बोले कि ठीक है, लाओ मुझे दो, मैं उन एक सेल्स को ट्राई करता हूँ। उस एक सेल्स को इन्होंने जब ट्राई किया, तो ट्राई करने के साथ इन्होंने फर्स्ट ही जब पॉइंट किया, उसको एग्जैक्ट निशाना पे लगा। तब उनको लगा कि कहीं ना कहीं विवेकानंद से तुक्के में ये चीज हो गई होगी। लगातार उनसे बोला गया करने के लिए, 20 टाइम्स लगातार इन्होंने ट्राई किया और 20 टाइम्स वो निशाना पर ही लगा। तब वो सारे बच्चे जो इनके साथ देख रहे थे इनको, उस समय इनकी भी उम्र महज 30 साल के आसपास रही थी, सभी ने इनको, इनके आगे नतमस्तक होकर सभी बोलने लगे कि कैसे किया है। तब ये बताया कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा चीज है कंसंट्रेशन। हमको जो भी करना है कंसंट्रेशन से करना है। हम एक ही शब्द लिखेंगे लेकिन फुल कंसंट्रेशन से, हम एक ही पेज लिखेंगे लेकिन फुल कंसंट्रेशन से। तो क्यों नहीं इस चीज को हम लोग भी सब मिलके अपने विद्यालय में हम जो कुछ भी काम करें, हम थोड़ा ही करें लेकिन पूरे कंसंट्रेशन से करें। ठीक है, कभी कभी दबाव आता है, बहुत ज्यादा कुछ काम करना होता है, बच्चों को होमवर्क्स भी ज्यादा हो जाता है, हमारे लिए भी विद्यालय की बहुत सारी माने कार्यकलाप रह जाते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं जो करने होते हैं, और कभी कभी टाइम बाउंड काम आता है। लेकिन फिर भी हमको अपना कंसंट्रेशन नहीं लूज करना है, कंसंट्रेट करके काम करना है, तभी हम अपना 100% उसमें दे पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन। एक और चीज मुझे याद आ रही है इनकी, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया कि बचपन में वो प्रैक्टिकली वो इस कहे हुए चीजों को मानते नहीं थे, उसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन चीजों को वो खत्म करें, मिथ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि जो धारणा बन गई है वही सही है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसको करके देखते थे, सही लगता था तब उसको एक्सेप्ट करते थे, दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे। इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसा कि उस बच्ची ने बताया कि इनके पापा बहुत बड़े वकील थे, तो उन दिनों में जब वो वकील थे तो उनके घर में सिगार की पाइप रखी हुई रहती थी। बड़े बड़े घरानों में सिगार की पाइप पहले चलती थी, लोग उसको यूज करते थे। तो सिगार की पाइप रखी हुई थी उनके घर में। जैसे कि सपोज करिए कि कोई अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट का है वो ये सिगार यूज करेगा, जनरल कास्ट का है ये सिगार यूज करेगा, कोई किसी दूसरे धर्म को बिलोंग करता है वो ये कास्ट यूज करेगा, कोई और किसी दूसरे, 3-4 पाइप्स रखी हुई रहती थी। विवेकानंद को समझ में नहीं आता था कि कभी कोई आदमी आता है तो कोई पाइप दिया जाता है, अलग अलग कलर्स की पाइप थी। एक दिन जब इनको नहीं समझ में आया तो ये बैठ के सारी पाइप्स को निकाल के लगा के मुंह में टेस्ट किए। ठीक है, शाम में जब मालूम चला ये बात, नौकरों ने इनके घर में इनके माँ बाप को बताया। जब इनके पापा आए तो इनको डांट पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इनका जवाब सुन सभी हैरान हो गए। इन्होंने कहा कि आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस। उनको किसी में कोई अंतर नहीं दिखा, तो फिर ये अलग अलग क्यों रखा गया। ये एक उदाहरण था। इसी तरह का इनके जीवन वृत्तांत में जब आप जाएंगे, बहुत तरह की, जितने देर में झलकियां दिखाई गई उस समय में इनके जीवन से रिलेटेड बहुत सारा चीज मेरे नजरों से गुजर गया। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, ये जब इंडिया का भ्रमण कर रहे थे 1897 में, जब लौट के आए वहां से विदेश से, तो ये इंडिया में इधर
एक छोर से दूसरे छोर तक प्रभ्रमण कर रहे थे। मध्य प्रदेश में किसी राजा के राज दरबार में ये गए। वहां पर उसने इनसे क्वेश्चन किया कि तुम लोग भगवान की पूजा करते हो, तुम वेदांता में विश्वास करते हो, क्यों करते हो? और एक फोटो का, एक मूर्ति का पूजा क्यों? तब इसका जवाब उन्होंने उनको संतुष्ट करने के लिए उन्हीं के दरबार में जो बाकी लोगों का फोटो लगा हुआ था, जो कि उनके ही राजघराने के उनके पूर्वज रहे होंगे, उनको निकालकर एक फोटो को लेके उसको वहां से उठाकर जो दीवार में टंगा हुआ था नीचे रख दिया और बोले कि अगर मैं अब इसको अपमानित करूं तो आपको अच्छा लगेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं। ठीक उसी तरह से हम लोग भी, जो हमारी आस्थाएं हैं, उस आस्था के हिसाब से हम लोग अपने मन में एक अपने धर्म के प्रति या जिस भी किसी धर्म को हम जानते हैं उसके प्रति हमारी एक आस्था है। तो सही बात तो यह है कि जिसका जिस भी धर्म में आस्था हो उसको उसमें हस्तक्षेप ना करने दें, उसकी जिसमें संतुष्टि हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इनका भी यही था कि समाज में लास्ट एक ही है, अंत एक ही है, शुरुआत भी वहीं एक से हो रहा है। ये भी उसी चीज को मानते रहे और इस चलते इन्होंने सबको साथ लेके चलने के सिद्धांत पे जोर दिया। कहीं से भी ये अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। वेदांता के बारे में इन्होंने लिखा है, बहुत कुछ बताया, लेकिन कभी भी उसको ये नहीं कहा कि यहाँ सिर्फ यही सब कुछ है। आप जिस भी माध्यम से अपना बेस्ट समाज को दे सकते हैं, इनका पूरा का पूरा जीवन कृत्य, पूरा का पूरा जीवन इसी चीज पर है कि हम समाज को अपने तरफ से जो भी मेरा सर्वोत्तम है हम दें। हम जिस जगह पर हैं, अगर हम घर में, परिवार में, जहां भी हैं, आप अपना बेस्ट समाज को देते रहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो हम लोगों को लाइव देख रहे हैं वो निश्चित तौर पे कम से कम, मैं इस विद्यालय का मुखिया होने के नाते आप सभी बच्चों से जो हमारे विद्यालय के हैं यही अनुरोध करूंगा कि आप निश्चित तौर पे अपना सर्वोत्तम इस समाज को दीजिए और तभी जाकर निश्चित तौर पे हम जो ये आयोजन, दिवस, ये सारी चीजें सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, इसकी सार्थकता सिद्ध हो पाएगी, सार्थकता रह पाएगी। और निश्चित तौर पे हमारे बच्चे, हमारे जो भी अभिभावक बच्चों के सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को इसी तरफ मोड़ेंगे और हमारे शिक्षक भी उसमें अपना सहयोग करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और इसको जैसा कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में इसको यूथ वीक के रूप में भी सेलिब्रेट करना है, तो निश्चित तौर पे हमारे गाइड्स एंड स्काउट गाइड्स के जो स्टूडेंट हैं वो इसको हमारे टीचर्स के साथ मिलकर कंटिन्यूअसली ये 1 वीक का प्रोग्राम होगा जिसको हम लोग डे वाइज सेलिब्रेट करेंगे और हमारे टीचर्स इसमें आप लोगों का साथ देंगे। और बच्चों, आपसे भी ये अनुरोध है कि आप भी हमारे शिक्षकों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। धन्यवाद एवं शुभ। Thank you very much, sir, for your worthy words. Definitely these are beneficial, these are useful. The instances that you have cited from the life of Swami Vivekananda, which are very much useful for all of us. Our children will definitely be benefited. Once again, from the core of my heart, I would like to give thanks, sir. Here, in the next, I would like to request Jolly Madam, please come over here and shower the vote of thanks. Madam, please. Thank you, sir. Before expressing my vote of thanks,
I would also like to share a story. Actually, what I have felt that Swami Vivekananda cannot be expressed in words. It's a feeling. इतनी छोटी लाइफ और इतना सारा अचीवमेंट्स जिसको हम एक दिन में और वर्ड्स में हम इसको नहीं एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. इट्स अ फीलिंग. स्वामी विवेकानंद ऐसे ही एक छोटा सा स्टोरी मैं कह रही हूँ. एक बार जैसे सर ने बताया, इनको परिव्राजक भिक्षुक के रूप में जाना जाता था. यंग मॉन्क थे, तो राजस्थान से गुजर रहे थे. बहुत गर्मी था, उनको बहुत ज्यादा प्यास लग रहा था. उस टाइम राजस्थान में पानी मिलना बहुत बड़ी बात थी, पानी का बहुत कमी था. तो वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ गांव की कुछ महिलाएं एक जगह से पानी भर रहे थे. तो ये जो कहानी है, इसके बाद से बेटा जो हम स्वामी विवेकानंद के जो पगड़ी देखते हैं उसके सर पे, उसके बाद से शुरू हुआ है ये. तो उन्होंने पानी मांगा, तब गांव की एक बुजुर्ग महिला उनको पानी पिलाया. जैसे ही उन्होंने देखा यंग मॉन्क एक सामने खड़े हैं, सन्यासी है, तो उन्होंने उनको पानी पिलाया. और उन्होंने अपना जो चुनरी जो है, राजस्थान में जो चुनरी डालते हैं, तो वो चुनरी उनको दिया और उनको कहा कि बेटा आप इसको सर पे बांध लो ताकि आपको धूप ना लगे. इतना तपती धूप है तो ये आपको ना लगे, आपको थोड़ा राहत मिलेगा. तो उन्होंने क्या किया, उस माता को उन्होंने कहा, वो चुनरी ले लिया और उन्होंने उस माता को कहा कि आज से ये चुनरी जो है ये मेरा सर पे, मैं इसको स्थान देता हूँ और आज से ये मेरा हमेशा ही सर पे रहेगा. तो उन्होंने इतना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया. तो मैं ये बच्चों को कहना चाहती हूँ, जो बच्चे स्वामी विवेकानंद को जो रीड कर जो पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो एक विनर होगा. उसका लाइफ जो है बहुत अच्छा, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग्स वो जरूर बनेगा. ये मैं तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ. Now I am coming to the point, to express my vote of thanks. Actually, I am very emotional when I read Swami Vivekananda because I am attached with Sri Ramakrishna Mission. मैं बच्चों को ये भी कहना चाहूंगी, अगर मौका मिले तो कोलकाता में बेलूर मठ है, रामकृष्ण मिशन, कभी विजिट करें तो बहुत अच्छा लगेगा. वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का, रामाकृष्ण जी का जो भी उन्होंने यूज किया है वो सामान रखा हुआ है, बहुत अच्छा से उसको मेंटेन किया जाता है. कभी भी टाइम मिले तो आप एक ही दिन का टाइम निकाल के आप जरूर विजिट करें, तो डेफिनेटली यू विल गेन समथिंग. Now, Honorable Principal Sir, my dear learned colleagues, parents and my dear children. So we have celebrated today, that is the great leader, what to say, Swami Vivekananda's birthday, 159th birthday actually this is. So first of all I would like to express my heartfelt thanks to all the children that within a very little span of time they have prepared themselves, they have expressed their feelings, their words. I am also thankful to the parents so that they have prepared the children in a nice manner. I am also thankful to all my colleagues. They have cooperated, they have given their best to make the program a successful one. I am also thankful to Honorable Principal Sir for his guidance so that within a very little span of time this program can be conducted. I am also thankful to each and everybody of this Vidyalaya who directly or indirectly involved with this program. And now I am thankful to the Almighty that to send Swami Vivekananda on this earth. I am Bengali and from Kolkata. I feel Swami Vivekananda's teaching. Whenever I get time, I visit Belur Mott, Ramakrishna Mission, and I can't express my feelings, the mental peace that I get there. So I am thankful to each and everybody present here. Thank you. Thank you very much, ma'am. Really,
each and everyone is worthy of being praised, is worthy of being thanked. As per their capacity and capability, everyone has contributed under the leadership of our adorable Principal Sir. This has become possible. So once again, I would like to give thanks to each and everybody directly or indirectly involved with this program. So thanks a lot. Disperse.